Hello everyone, welcome to study panel. This is Devendra C. Jhala from Kendriya Vidyalaya Rajkot. In today's video, we shall solve the graded worksheet for circle. Now, in this part 1, we'll solve the worksheet of level 1. So let us move on to the concept directly. Now the first question is, draw any two circular objects in the below box. Here we have given two boxes, and in these boxes we need to draw any two circular objects of your choice. So here I have drawn it. The first one is a wheel, the second one is a wall clock. So you can draw here any two circular objects of your choice. Move on to the next question. Question 2. A simple closed curve. Now see, I think we have come across the concept called closed curve. क्लोज कर्व हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऐसा कर्व जो क्लोज होता है उसको हम लोग क्लोज कर्व कहते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर कोई ऐसा कर्व दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्लोज कर्व नहीं कहेंगे, ये होगा ओपन कर्व। तो क्लोज कर्व क्या होता है, और उसमें भी यहाँ पर एक वर्ड ऐड किया हुआ है, सिंपल क्लोज कर्व। एक्चुअली बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, क्योंकि जो सर्कल एंड स्क्वायर दोनों जो है वो दोनों ही सिंपल क्लोज कर्व है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ सिंपल क्लोज कर्व। अ सिंपल क्लोज कर्व इज अ कर्व which does not cross itself and has no endpoint. Suppose कोई ऐसा हमने बनाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो है ये तो क्लोज्ड है ना, यहाँ पर ये हमें पता। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसके स्टार्ट पॉइंट, अगर ये स्टार्ट पॉइंट हुआ तो ये एंड पॉइंट है, और अगर इसको हम एंड पॉइंट मानते हैं, इसको अगर स्टार्ट पॉइंट मानते हैं तो ये एंड पॉइंट है। लेकिन जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है उनमें एंड पॉइंट्स होते हैं नहीं, ना ही उनमें स्टार्ट पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर हमारे सही आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ सर्कल को प्रिफर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो सर्कल है, तो हम यहाँ पर सर्कल को प्रिफर करेंगे। दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स of a simple closed curve. There are many more, but we are dealing with only these two. First is circle, then square, and this is rectangle. So like this. Now move on to the next question. A circle has dash center, one or many. Now see, this is a circle. We all know that a circle has only one center. So the correct answer is 1. We will write here 1 in the next question. Do a circle have corners? Let us see. Circle has no straight lines. We all know that circle जो होता है उसको कोई straight line नहीं होती है. So it does not have any corners. So do a circle have corners? The correct answer is no. Circle does not have corners. A diameter always passes through dash of a circle. See, when we were dealing with the topic called circle, we come across the certain parts of the circle, that is center, chord, radius, diameter, like this. So diameter is always passes through dash of a circle. Here the two option is radius and center. So let us see. A diameter is a straight line which starts at one point of a circle and goes through the center. So the correct answer is center. Ends on the other point. Now see, here we can see this is a circle and this is a diameter. So diameter is passes through the center of the circle. So the correct answer will be center. Next question. Diameter is equal to 2 into dash. Now here, first of all, we have to know about the definition of these two concepts, that is radius and chord. What is a radius? Radius हमें पता है क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये radius है। अगर कोई भी, if any line segment or any straight line which starts from the center of the circle and ends on the circle, that is known as radius. अगर ये हम देखें कि कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर से स्टार्ट हो रही है और सर्कल के ऊपर कहीं पर भी खत्म हो रही है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर, वो कहीं पर भी हो सकती है, आप कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहेंगे। लेकिन डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है कि डायमीटर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है कि जो जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर रहेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है, ये पूरे अगर लंबी लाइन को हम देखें तो ये डायमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर का डेफिनेशन हमने देखा कि उसके दोनों एंड पॉइंट्स किसके ऊपर रहेंगे, सर्कल के ऊपर रहते हैं। एंड
इट ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो कहां से पास होती है, सेंटर से पास होती है डायमीटर। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर ये पूरा डायमीटर बना हुआ है तो दो रेडियस इसकी वजह से बना हुआ है, दिस इज रेडियस 1 एंड दिस इज रेडियस 2। एक रेडियस यहाँ से स्टार्ट होके ये सेंटर से स्टार्ट होके यहाँ पर सर्कल पे खत्म हो जाता है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डायामीटर इज 2 इंटू रेडियस, यानी अगर दो रेडियस को हम मिलाएंगे तो हमें डायमीटर मिलेगा। If a radius is equal to 3 centimeter, then diameter is dash centimeter. Now suppose यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले हमने एक रेडियस बना लिया, ये रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर का है, तो उसका डायमीटर क्या होगा, हमने अभी आगे देखा कि रेडियस इज इक्वल टू, हम अगर कहें तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स ऑन द सर्कल। तो ये वाला हिस्सा तो क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर इसका डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने आगे ही देखा, डायमीटर इज इक्वल टू आर इंटू 2। हमने आगे देखा कि जब रेडियस का 2 टाइम होगा तो रेडियस यहाँ पर कितना है, 3 सेंटीमीटर है, इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। अगर उसको हम फिगर्स में देखें तो ये देखिए, ये हमने दूसरा बना लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा हमने बना लिया रेडियस। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा डायमीटर हमारा होगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पूरा डायमीटर होगा, तो 3 + 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर होगा। सो द करेक्ट आंसर इज 6 सेंटीमीटर, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। कम टू द क्वेश्चन 8, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डैश। सी, रेडियस किसका हाफ है, हमें पता है कि डायमीटर जो है ना, अगर उसको हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू रेडियस करना पड़ेगा। तो अगर हमें डायमीटर निकालना है तो 2 इंटू रेडियस करना पड़ता है। तो जब हमें रेडियस निकालना है, यानी यहाँ से स्टार्ट होके इतना ही हिस्सा निकालना है, तो अगर देखा जाए तो ये सिर्फ उसका हाफ होगा। किसका हाफ होगा, ये यहाँ से लेके जो ये पूरी लाइन है उसका सिर्फ हाफ हिस्सा होगा, तो हम ये हाफ हिस्सा हटा देंगे। तो ये हमारे पास क्या बच गया, सो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। एक्चुअली कॉर्ड अभी तक हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, कॉर्ड आगे के वीडियोस में आएगा तब देखेंगे। लेकिन जो है रेडियस होता है वो किसका हाफ होता है, डायमीटर का हाफ ऑफ डायमीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 9, इफ डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलो देख लेते हैं, ये डायमीटर आ गया 6 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस इज, सी हमें पता है डायमीटर जो है वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है ना। डायमीटर इज 2 इंटू आर, यहाँ पर कर देंगे हम, है ना, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। अगर हम यहाँ कर देते हैं तो हमें पता है कि जब हमें रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा। हाफ करना पड़ेगा तो हम आधा डायमीटर जो है, आधा जो डायमीटर है उसको कट कर देंगे, तो ये वाला रेडियस हमारा कट हो गया। तो अब हमारे पास कितना बचा, 3 सेंटीमीटर। सो हाफ ऑफ, यहाँ लिख देंगे हम, हाफ ऑफ d is half of 6, so the correct answer is 3 centimeter. Move on to the next question. Dash divides the circle into 2 equal halves. रेडियस हमने देखा, रेडियस कहां से स्टार्ट होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है और कहां पर खत्म होता है, ऑन द सर्कल। ये क्लियर है ना। जबकि डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स किसके ऊपर होते हैं, ऑन द सर्कल होते हैं। तो एक्चुअल में डायमीटर ही जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सर्कल है और ये डायमीटर है। एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जिसमें डायमीटर जो है इस तरह बना हुआ है। एक्चुअली ये अकेला ही डायमीटर नहीं होता है किसी सर्कल में, डायमीटर ऐसे भी हो सकता है, ये भी उसको 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड करता है। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह ये भी डायमीटर है और ये भी अगेन जो है सर्कल को 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड करता है। I hope this video will be useful to you. Thank you for watching. Thank you so much.